ایک ماں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، وہ بیمار ہو یا تندرست، پریشان ہو یا خوش، لیکن اسے اپنے بچوں کو ہر حال میں خوش رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانی ماما چڑیا کی بھی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھونسلے میں سو رہی تھی کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اٹھتے ہی اس کی نظر کھڑکی پر جاتی ہے۔ بارش کی کچھ بوندیں اس کی کھڑکی سے اس کے گھونسلے میں آ رہی تھی اور وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ جنگل میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس بار تو جنگل میں برسات ساون سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ یہ تو اچھا ہوا جو میں نے اپنا گھر بہت مضبوطی سے بنا لیا تھا، ورنہ اب میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاتی۔ پھر رانو چڑیا اپنے بچوں کو گھونسلے سمیت اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیتی ہے۔ اس کے بچے سو رہے تھے اور اس کا گھونسلہ مضبوط تھا۔ پھر ماما چڑیا دن کے چڑھنے سے پہلے ہی چولہے میں آگ جلاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا لیتی ہے۔ چلو میرے بچوں اٹھ جاؤ، کھانا تیار ہے، اور تمہیں پتہ ہے جنگل میں بہت اچھی بارش ہو رہی ہے۔ بارش کا سنتے ہی دونوں بچے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں، جب رات کو میری آنکھ کھلی تو بارش ہو رہی تھی، لیکن میں پھر سے سو گئی۔ ہاں ماما، بارش کا تھوڑا تھوڑا پانی میرے اوپر بھی آ رہا تھا۔ ہا 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 ہا۔ ہاں بیٹا، مجھے پتا ہے بارش رات سے ہی لگاتار ہو رہی ہے۔ پھر میں اٹھی تو کھڑکی سے پانی آ رہا تھا۔ میں نے تم دونوں کا گھونسلہ اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا جہاں پر کھڑکی سے پانی اندر تمہارے گھونسلے پر نہ آ سکے۔ اچھا پیارے بچوں، اب آپ دونوں کھانا کھا لو۔ میں مالکن کے گھر جا رہی ہوں کام کرنے۔ آج مالکن نے مجھے جلدی بلایا ہے۔ ماں، کبھی بارش کا اچھا موسم آپ ہمارے ساتھ بھی گزار لیا کریں۔ آج اگر آپ چھٹی کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ بیٹا، اگر ایسے ہی چھٹیاں کرتی رہی تو کام کون کرے گا اور میرے بچوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا؟ تم دونوں کو کھانا کون کھلائے گا بیٹا؟ اگر میں کام نہیں کروں گی تو پھر ہم بھوکے ہی رہیں گے۔ پھر مما چڑیا اپنے بچوں کو کھانا دے کر اپنا چھاتا اٹھاتی ہے اور اپنی مالکن گوری کے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے۔ آ گئی ہو مہارانی، 12 بجے آئی ہو، 10 بجے تو تمہاری آنکھ کھلتی ہوگی۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ بارش میں کام زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں مالکن، ابھی تو صرف 7 ہی بجے ہیں۔ میں نے تو اپنے بچوں کو بہت جلدی جلدی کھانا دیا۔ دن چڑھنے سے پہلے ہی میں نے کھانا بنا لیا تھا تاکہ کہیں کام پر جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ ابھی تو صرف 7 بج رہے ہیں، آپ ٹائم دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، زیادہ لیکچر مت دیا کرو اور چھت پر جا کر دیکھو کہ بارش کا پانی کہاں سے ٹپک رہا ہے۔ اور پھر چڑیا کووں کی چھت کو دیکھتی ہے۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ وہ درخت کے اوپر سے 2 پتے توڑ کر اس چھت کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ ہو گیا مالکن، چھت کے اوپر ایک سوراخ تھا اور میں نے درخت سے پتے توڑ کر اس کے اوپر لگا دیے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ صفائی کر لو اور برتن بھی دھو دینا۔ آج مجھے اپنی ماں کے گھر جانا ہے، تم کام جلدی سے ختم کر لو۔ پھر رانو چڑیا مالکن گوری کے گھر کا سارا کام کر دیتی ہے۔ گرمیوں کا موسم تو ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی دھوپ تو کبھی بارش۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اسی طرح اس دن بھی بہت تیز دھوپ تھی جس دن رانو چڑیا اپنی مالکن گوری کوی کا سامان دکان سے لینے جاتی ہے۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ جب رانو چڑیا گوری مالکن کا سامان لے کر واپس لوٹ رہی تھی تو اسے اتنی زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے کہ اسے چکر آنے لگتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے وہ مالکن کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری مالکن، آج گرمی بہت زیادہ تھی، نہ جانے کیوں مجھے چکر آنے لگے۔ موسم گرمی کا ہے، اگر تمہیں چکر آ رہے ہیں تو 1-2 دن چھٹی کر لو اور گھر میں بیٹھو۔ گوری، اس بیچاری کو دوا دے دو، وہ صبح سے شام تک کام کرتی ہے۔ اب آرام کرنے سے سارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، میڈیسن تو کھانی ہی پڑے گی نا اسے۔
काम करती है तो ना करे, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती, अपने महाना पैसे लेती है मुझसे, और तुम्हें तो बस मौका चाहिए उसका साथ देने के लिए। जो महाना तनख्वाह देती हूँ ना मैं उसे, वो भी तुम्हारे पैसों से नहीं, मेरी माँ भेजती है मुझे पैसे। अरे मालकिन, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर ली। मुझे नहीं ज़रूरत मेडिसन की, आप बस मुझे फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी का दे दें, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। हाँ, ठंडा पानी, बाहर जा और टूटी से ताज़ा पानी पी ले, ये फ्रिज हमने तेरे लिए नहीं रखा हुआ। और कालू, तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? बाहर जाओ और कोई अपना काम कर लो। फिर रानो चिड़िया वहाँ से बाहर जाती है और टूटी से जैसे ही पानी पीने लगती है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। गोरी कवि फौरन से बाहर आती है। नाटक कर रही होगी, इसे कोई काम नहीं है, ये बस यहाँ पर 2 बर्तन ही तो धोती है, और दुकान से थोड़ा सा सामान लाने से कौन बेहोश हो जाता है भला। कालू, जा इसके बच्चों को बुला और उन्हें कह के इसे ले जाए यहाँ से। मैं ले जाता हूँ इसे गोरी, इसके घर पर पहुँचा आता हूँ। इस चिड़िया को तो तुझे गोद में उठाने का शौक चढ़ा हुआ है, तू रहने दे, मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ। इतनी ही देर में गोरी कवि के सामने एक ऑटो आ जाता है और गोरी ऑटो वाले की मदद से रानो चिड़िया को उठाकर उस ऑटो में लिटा देती है। ले जाओ इसे ऑटो वाले भैया, और हाँ, इसके घर पर पहुंचाकर इसके बच्चों से किराया ले लेना। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, मुझे अभी पैसे चाहिए, तभी लेकर जाऊंगा मैं इसको। ठीक है, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, फिर मैं इसकी तनख्वाह से काट लूँगी। और इस तरह रानो चिड़िया ऑटो वाले के साथ जैसे तैसे करके अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है। माँ को न जाने क्या हो गया है, मामा की तो हालत बहुत ख़राब लग रही है, और मामा आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं भैया, मामा को पता नहीं क्या हो गया है। गुड़िया, तुम परेशान मत हो, तुम यहीं पे घर पर ही रहना, और मैं जा रहा हूँ गोरी मालकिन के पास, उससे कहूँगा कि मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं तोते अंकल से मामा की मेडिसन ला सकूँ। और फिर इस तरह रानो चिड़िया का बेटा पिंकू अपने घोंसले से निकल पड़ता है और अपनी मामा की मालकिन गोरी कवि के पास चला जाता है, उसे सारी बात बताता है। देखो भाई, मैंने तो पहले तुम्हारी माँ से बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई है, और अब तुम आ गए हो यहाँ पर। मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी, अभी तो वैसे भी आज 25 तारीख है, अभी तो 5 दिन रहते हैं काम करने के उसके, और मैं अभी से उसे तनख्वाह दे दूं, और मैंने तो रिक्शे वाले का किराया भी काटना है, उसके पैसे काटकर पीछे बचते ही कितने हैं तुम्हारी माँ के पैसे मेरी तरफ। और इस तरह गोरी कवि बजाय पिंकू की मदद करने के उसे बहुत सी बातें सुनाकर वहाँ से भेज देती है। गोरी, थोड़ी तो शर्म कर लो, रानो चिड़िया कितनी मेहनत से हमारे घर पर काम करती है, और अब जब उस पर इतना बुरा वक्त आया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो तुमसे मदद मांगने आया तो तुमने उसकी मदद करने की बजाय उसे इतना लंबा लेक्चर दे दिया। हाँ कालू, मेरी मर्जी और मेरी अपनी लाइफ है, मैं जो भी करूं, तुम अपने काम से काम रखो। गोरी कवि कालू कौवे को ऐसे बातें सुनाते हुए दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। पता नहीं क्या होगा, मामा को तो होश ही नहीं आ रहा, और मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं तोते अंकल से कैसे मेडिसन लूं? पहले भी जब मैं बीमार हुआ था तो माँ ने उधार ही दवा ली थी मेरे बुखार को कम करने के लिए। अगर अब दोबारा गया तो तोते अंकल मुझे उधार दवाई भी नहीं देंगे, और गोरी मालकिन भी तो मदद नहीं कर रही मेरी, मैं कैसे मामा को ठीक करूं? और इस तरह रानो चिड़िया का बेटा पिंकू नदी पर बैठकर रो रहा था और बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपनी मामा को ठीक करना चाहता था, लेकिन उसके पास मेडिसिन लेने के लिए पैसे ही ना थे। पिंकू ऐसे ही नदी पर बैठकर रो रहा था कि अचानक से उसके पास परी आ जाती है। अरे पिंकू, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना?
और फिर पिंकू उस परी को सब बात बता देता है। वो परी पिंकू की बहुत पुरानी दोस्त थी। जब भी पिंकू नदी पर खेलने जाता तो उस परी से उसकी मुलाकात हो जाया करती थी। और फिर पिंकू जैसे ही उसे अपनी सारी बात बताता है तो परी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे पिंकू दोस्त, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत हो। ये लो, ये पानी जादुई है। इसके 2-3 कतरे तुम अपनी मामा को पिला देना। और ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। ये तुम अपने घर की अलमारी में रख देना। तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और इस तरह पिंकू परी से पानी वाली बोतल और वो जादुई पत्थर ले जाकर अपने घर में रख देता है। उस जादुई पानी वाली बोतल से 2-3 कतरे पिंकू अपनी मामा के मुंह में डालता है और उसकी मामा फौरन से होश में आ जाती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों परेशान क्यों हो? मामा, आप बेहोश थी इतने दिनों से, आज आपको होश आया है। और फिर पिंकू अपनी मामा को सारी बात बताता है कि कैसे गौरी कवि ने उसे बातें सुनाई और उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं की। पिंकू बेटा, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, ये दुनिया ऐसी ही है। फिर पिंकू और गुड़िया अपने मामा के गले से लग जाते हैं। रानू चिड़िया जैसे ही अपनी अलमारी खोलती है तो उसे वही जादुई पत्थर मिलता है। अरे पिंकू, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? मामा, ये तो मुझे मेरी दोस्त परी ने दी थी। ये कोई चीज़ है जादुई, और उसने कहा था इससे तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उस पत्थर को ले जा जंगल के बहुत बड़े जवारी की दुकान पर बेच देती है। अब रानू चिड़िया बहुत अमीर हो गई थी और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए थे। कुछ दिनों के बाद गौरी कवि रानू चिड़िया के घर पर आती है। रानो, अब अगर तुम्हारे ड्रामे ख़त्म हो गए हों तो काम पर आ जाना। कितने दिनों से हमारा घर ऐसे ही गंदा पड़ा है, उसकी साफ सुथराई भी करनी है तुमने और बर्तन भी धोने वाले ही पड़े हैं। अरे नहीं नहीं गौरी जी, अब तो बस मुझे काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मेरे खाने पीने का सामान वैसे ही ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और हाँ, अगर आपकी नज़र में कोई काम करने वाली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मुझे भी एक काम करने वाली की ज़रूरत है। गौरी कवि बहुत हैरान होकर रानू चिड़िया के मुंह की तरफ देखती है और बहुत गुस्से में आग बगोला होते हुए वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।